everyone, once again welcome to Lawprax channel, and I'm so happy that I have All India rank 9 Vidit Rawat with us. Congratulations Vidit. Thank you ma'am, thanks a lot. And I came to Bhopal specifically to meet him today because इसका center elite से related भोपाल में था, and I'm so happy that I got to meet him. And we celebrated with some other students also, तो hopefully उसका भी video upload होगा. पर विदित की AIR 9 है, तो I thought we should keep it थोड़ा सा एक अलग से interview. बाकी हम short में करेंगे, in detail interview हम और आगे अच्छे से करेंगे, right? Okay, so सबसे पहले विदित why आपने क्यों सोचा law से? Because अभी I was talking to your relatives, तो वो बता रहे थे कि आप science और ये सब, तो why? मैम 10th got over, फिर उसके बाद I got good grades. उसके बाद पूरी फैमिली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, सब इंजीनियर थे. कोई मतलब I was the first one in my family who pursued arts, humanities. Despite good grades. Yeah, despite good, I got 99 in science, 92 in maths, so it was good in class 10th ICSE. So I revolted. So they were like, obviously you're going to take maths, and I was like, no, obviously not. I have a deep interest in GK. So मैं GK करूँगा, GK से related कुछ तो history, geography, political science. I was very included by that. So I started looking for some career options, hotel management, law. Then it was like you can also do UPSC after UG. So I came across CLAT, and I found the syllabus very kind of familiar because I have been studying that since I was a kid. I was very intrigued by logical reasoning, analytical reasoning, and GK obviously. So yeah, You used to participate in GK quizzes and all? Actually, that's a very good story about that. I was very good at GK since I was a kid. वैसे मेरे GK हमेशा A++ ICSE में सिस्टम होता था, वो आते थे. एक बार मेरे C आ गया था, तो I cried for the whole day. मैथ्स में अगर कभी बॉर्डर लाइन पास हो गए तो उसमें मुझे नहीं लगता था, बट GK में मुझे खासकर लगता था बिकॉज मेरी हॉबी थी. तो या GK you were very like GK you would read what all things you used to read GK में? ट्रिविया क्विज हो गया, अलग-अलग मैगजीन्स हो गई. I have been reading the Hindu since I was a kid, and बहुत सारा KBC आ गया सामने, उसके क्वेश्चंस मोस्टली सही हो गए, तो एक कॉन्फिडेंस आता था कि या आई एम डूइंग गुड इन जीके. Good. So once you decided कि चलो law pursue करना है, you are going to be first generation lawyer in your family, तो family की तरफ से नहीं था कि यार ऐसा, मतलब how did you convince them? Parents का नहीं pressure था, because today only I dealt with a parent जो कि they were very dismissive of their kid, and they literally are saying, आप आए थे से थोड़ी देर पहले कि ये तो कुछ नहीं करना चाह रहे इसलिए ये कर रहे हैं. तो do you think that's the approach why people are? मैम जो आपने लाइन बोली अभी, कुछ नहीं करना चाह रहे, ये सेम हुआ था मेरे संग. माय ग्रैंडफादर सेड टू माय मदर, ही सच गुड इन स्टडीज, तो उसका करियर बर्बाद कर रहे हो लॉ में भेज के. एंड माय मॉम वाज लाइक, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा. तो बाद में फेथ रखा एक बार, थोड़ा स्टार्टिंग में उन्हें भी लगा, बट आई रीअश्योर्ड देम दैट आई डू गुड, तो उन्हें भी लगा. फिर उसके बाद 12th में बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने. तो Right, okay. So you had appeared for CLAT earlier last year? Yeah, actually I gave CLAT in class 12th and I got an AIR of 8760. You messaged me, it's such a redemption. Yeah, as soon as the result came, the first thing I did was message Anupama ma'am. I was like, I finally done it. It's the biggest comeback for me because 8760 to AIR 9, I think. And a lot of people must have dismissed you because of that relatives. And there's one GK teacher. I won't take the name, but when I told them my rank last year, so they said, बेटा इधर से we'll try कि आपको 8760 से 800 ले जाएं, क्योंकि उसके beyond उससे और ऊपर ले जाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी रैंक में नहीं हो पाता. And they must be so sorry today. Yeah, today they don't have any rank under 500. Okay, good. So that's a redemption. Yeah, that's a redemption. Good. That's good. That's a good story. Okay, now once you started preparing beta seriously for this, you see, you had appeared earlier also, and you did it this year also. So what are the key things you kept in mind when preparing? क्या चीजें आपने difference notice किया आपकी preparation में भी? मैम बहुत सारे students starting में aspirants QT पे फोकस नहीं करते, जीके से डरते हैं. सो आई टोल्ड यू अबाउट माय जीके. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट
अबाउट इट, सो उसका फैक्टर साइड हो गया था. देन अबाउट माई वोकैब, या आई हैड टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर माई वोकैब. वर्ड पावर मेड इजी हो गया. हिंदू लेके बैठ जाना, उसके वर्ड्स ढूंढना, उसके सिनोनिम्स ढूंढना, उसके सिनोनिम्स जॉट डाउन करना. सो वोकैब का ये हो गया. एंड QT, the biggest mistake I did in class 12th was my first attempt. I didn't do QT. I was very reluctant about it. मैं अच्छा नहीं था QT में, तो मतलब क्लैट में भी मैं 12 में से 6 ही लाया था QT में पहली बार. अच्छा नहीं था, 12 में से 6 लाया था. बहुत बढ़िया, थैंक यू. You are being so humble. It was easy. So I should have worked well on it. Okay. Then But this year जब मैंने क्लैट दिया तो उसके पहले मेरे दिमाग में था that I have to do it this time. This is the one I have to make it count. And सुबह QT 2 घंटा, शाम को तो प्रैक्टिस होता गया. एंड आखिर में जब मैंने पेपर देखा तो वही हुआ कि QT पेपर देख के समझ गया मैं कि पेपर इजी है पिछली साल की तरह, तो QT सब कुछ डिसाइड करेगा. सो I did it. I got 8 on 12 in QT. Good. So that helped. Yeah, that helped. अच्छा, घंटों पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, कितना what would you recommend students who are preparing year long? मैम घंटे से पढ़ने वाले घंटे बन जाते हैं मेरे हिसाब से. तो घंटा ये शॉर्ट बनेगा एक्चुअली. मैम घंटे देख के तो कभी नहीं पढ़ा, बट ये था कि आपको डेली का वोकैब करना है, आपको डेली के 50 वर्ड्स करने हैं वोकैब के, आपको डेली QT करनी है 2 आवर्स, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है. तो उससे रीडिंग का काफी कवर हो गया. अगर आप एडिट का कर रहे हो, जैसे मैं स्पेसिफिकली कर रहा था, तो रोज 1 घंटा आपका एडिट हो गया एंड QT हो गई. बस ये मेन चीज आपके पॉइंट स्टिक होते जाए तो वो काफी है. इट्स नॉट लाइक कि अमराज कह के हैं कि 12 घंटे पढ़ना है. इट्स नॉट लाइक दैट. Good. Again another short to अच्छा, अगर when you are doing these things, no extra curricular, because देखो ड्रॉपर्स जो होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो इतना सारे दिन क्लैट के बारे में सोचते हैं कि वो उसका एक अलग प्रेशर होता है, ड्रॉप ईयर का एक अलग प्रेशर होता है. सो हाउ टू हैंडल दैट? स्टार्टिंग में तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं सब कुछ झोंक देना है, तो मैंने इंस्टा ऑल द सोशल मीडियाज आई डिलीटेड दैट. बट बीच में 1-2 महीने बाद मुझे फील हुआ कि आई एम गेटिंग वेरी आइसोलेटेड. सो कुछ मैगजीन पढ़ ली, लाइक आई एम अ बिग पॉटर हेड. हैरी पॉटर की बुक्स ले आए सारे. रात में अगर थोड़ा दिमाग में टेंशन लगा तो 2 चैप्टर पढ़ लिए, 40 पेज हो गए. थोड़ी उससे रीडिंग भी हो गई, वोकैब भी हो गई, थोड़ा फन भी हो गया. तो and anything else for extracurricular, any exercise? Yeah, I used to do yoga. I used to play badminton quite a few times. Cricket. Yeah. मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन जी रहे थे. Yeah, I never stopped doing all this. और स्पेशली फिर मुझे मोटिवेशन रहता था, ये पढ़ लिया, अच्छा उसके बाद ये खाऊंगा. अच्छा. इतना पढ़ लिया उसके बाद ये खाऊंगा. So that was the motivation. इतना तो नहीं आप ज़्यादा खाते हो. हाँ मैम, वो मेटाबॉलिज्म मेरा ऐसा है. अच्छा, okay. Another thing, subject wise, small ना subject wise जैसे CR में what would be the key trick you will suggest student कि ये ध्यान रखो? मैम मेनली बेसिक्स. कोई भी कोचिंग है, वेदर कोई भी हो, मैं LPT से मैंने बेसिक्स करे, तो CR बेसिक्स काफ़ी अच्छे थे. उनकी वीडियोस आप देखो, उन्हें बार-बार देखो. एक बार देख लिया, उनके नोट्स लिख लो, बट आफ्टर अगर आपका मौका चलेगा उनको वापस देखने दो, क्योंकि आप हर बार जब देखोगे ना उसको, आपको कुछ मिलेगा कि ये कुछ नया मिला देखने को, एलिमिनेट करने को ऑप्शन. एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर CR, I'll tell you honestly, I struggled for CR a lot. I used to cry because CR was my worst section. अगर मेरी कभी आपसे ऐसी पर्सनली बात हुई तो मैंने बताया भी होगा. तो what I did, me and my friend Ayushi, she did well. So we used to do PYQs together. She was the one you were talking to yesterday. Yeah. When I called, his phone was so busy. I was like, who are you talking to? Like, man, मेरे friend का भी उससे भी बात करनी जरूरी है. So yes, shout out to Ayushi. Yes, now. Yeah, so PYQs बहुत, मैं कहूँगा अगर कोई सेक्शन जिसके लिए PYQ सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो CR है, क्योंकि आप एक पैटर्न, क्लैट हमेशा से एक पैटर्न फॉलो करता रहा है 3-4 साल से. वो 4 ऑप्शन देंगे, 1 is irrelevant, 1 is extreme, 1 there are 2 left. You will get confused between the 2. बट जो एक होगा वो पैसेज में जो पूछ रहे हो उसके बारे में बात नहीं कर रहा होगा, वो पैसेज से ही होगा बट वो कुछ और बात कर रहा होगा, राइट? तो ऐसा एक पैटर्न फॉलो हुआ. तो मैंने देखा 3 महीने पहले कि अच्छा हाँ ये पैटर्न फॉलो करते हैं ये CR में, तो मैंने उसको वो करने लगा. तो इस बार मेरा CR में एक ही गलत हुआ था. Good, very good. Analytical में you had prepared for analytical as well. Yeah, my unit was good. Analytical का मैंने बताया मुझे इंटरेस्ट था हमेशा से. So
मेरे ईगो पे आ गया जब मैंने अभी क्लैट दिया तो मेरे ईगो पे आ गया था कि एनालिटिकल आई है तो इधर से तो 6 में 6 लाना है, तो उसमें मैंने 15 मिनट वेस्ट कर दिए, वो आंसर ही नहीं आ रहा था मेरा, विथड्रॉल हो गया, या दैट इट गॉट विथड्रॉन, अगर मैं शायद उसको कहीं और लगा देता तो बेटर कुछ रिजल्ट होता। सो या AR विथड्रॉ हो गया, लेकिन जो 2 किए वो सही थे एंड या AD होपफुली। गुड। एंड RC में व्हाट वुड यू रिकमेंड, वो क्या वर्क ऑन? मैम RC में बेसिकली अगर कुछ प्रैक्टिस करिए तो एलिमिनेशन आ जाएगा आपको कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस, एक्सट्रीम आंसर्स, उन्हें कैसे एलिमिनेट करना, वो क्या अभी जो बच्चे तैयार करेंगे उनके पास लॉन्ग टर्म होगा, तो व्हाट कैन दे डू टू मेक श्योर दे डू गुड इन RC? मैम RC में मेन थिंग मुझे ऐसा फील होता है कि vocab इज द की टू RC। हम वैसे क्लैट इतनी मुश्किल vocab पूछता नहीं है, लेकिन जो भी है इफ यू डू वर्ड पावर मेड इजी और व्हाटएवर द सोर्स इट इज, इफ यू स्टिक टू इट तो यू विल डू गुड। मैं पर्सनली क्या करता था, vocab का एक वर्ड ढूंढ लिया, सो उसको गूगल किया, उसके सिनोनिम्स गूगल करे, उसके एंटोनिम्स उस पे थीसिस कर ली, हाँ उसको उसके नोट डाउन कर लिया पूरा कि सिनोनिम्स ये हैं, एंटोनिम्स ये हैं, सो बेटर मुझे रिवाइज करने में। ओके, एंड देन यू यूज्ड टू रिवाइज योर vocab? या every vocab book? या for sure. Yeah, I'm going to share it on the Telegram and Instagram बच्चों के अकाउंट में, ऐसे vocab बनाते, because when we tell them ना, they like कि तो 5 नंबर की है। Yeah, it's not ideal but yeah. Still. Yeah. Okay, right. So legal, what was your approach for legal? I think ज़्यादा लीगल पढ़ने से, अगर बहुत ज़्यादा आपने लाइव लॉ से पढ़ लिया और बेंच बार एंड बेंच से पढ़ लिया, तो वो मुझे लगता है कि आप अपनी पर्सनल नॉलेज लगाने रखते हो। So stick to the basics, torts, contracts, crimes, जो न्यूज़ में या environmental law, the static जो मेन है, उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट जो लॉ चल रहा है उसकी LBD पे क्लासेस थी, आप जहाँ से भी देखना, तो या दैट वाज ऑल। जैसे मैं क्लैट एक्सप्रेस में पढ़ता था, उधर भी काफी दिया रहता था, तो most of the topics, हाँ तो जैसे क्लैट में आया तो मुझे लगा ये सब तो पढ़ा हुआ है, तो जल्दी हो गया सब। तो लीगल का तो यही था। एंड क्वांट you had तो क्वांट आपने शुरू से इस बार प्रैक्टिस करी ढंग से? हाँ मैम, मेन थिंग क्वांट में यही था, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो, या आइडेंटिफाई द टॉपिक्स एंड वर्क ऑन इट, एंड उसके बाद थोड़ा SI CI प्रॉफिट, अगर बहुत डीप में घुसे तो वैसे भी दिमाग में चलेगा, लेकिन ऊपर से थोड़ा। करेक्ट। एंड फॉर जीके तो यू आर ऑलवेज गुड इन इट, ऐसा? आई थिंक ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा क्या ना, तो वैसे सीनियर वेट कर रहे हैं आप, अच्छा इधर जीके बहुत अच्छा है, ठीक है। मैम जीके के लिए मैंने पर्सनली जो गलती करी मेरी ये थी, मैंने 10 सोर्स पढ़ लिए, मैंने दृष्टि भी पढ़ ली, मैंने सब पढ़ लिया, हर कोचिंग से मटेरियल पढ़ लिया, पायरेटेड जो आया मेरे सामने देखा, मैंने सब पढ़ लिया। सो जब लास्ट में 3 मंथ बचे तो आयुषी ने मुझे ये बताया कि मतलब मैं उसे जीके पढ़ा देता था, आई यूज्ड टू टेक हर क्लासेस, I used to teach her कि क्लैट एक्सप्रेस में ये है, you have to study this. So एक पॉइंट आया जब उसके बहुत ज्यादा आने लगे जीके में, तो I was like मतलब मैंने अपने आप को इंटरोगेट किया कि क्या गलत हो रहा है कि पढ़ाने वाले के कम आ रहे हैं, पढ़ने वाले के ज्यादा आ रहे हैं। So then I realized सोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए थे, सोर्सेज लिमिट करने की जरूरत है, तो मैंने क्लैट एक्सप्रेस, उसके बाद क्लैट LPT की वीडियोस हो गया, कुछ एक आध कंपेंडियम और पढ़ना हो, बस 2 कंपेंडियम इनफ है, बट रिवाइज इट। मेन चीज इज रिवीजन, इफ यू डोंट रिवाइज इट तो yeah, that's your point. So mocks analysis, how much time you used to devote in that? I think ये तो सिंपल सा है, किसी से भी सुनो, कोई भी टॉपर बोलेगा तो वो ये बोलेगा कि डबल टाइम दो एटलीस्ट। क्योंकि सिर्फ मॉक देके बस हो गया उससे कुछ नहीं होगा, आपकी स्पीड ही बढ़ेगी, उससे कुछ एक्यूरेसी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड नाउ क्लैट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। So yeah, you have to analyze it really well. ना every mistake, whatever you are doing. Yeah, you have to जैसे जीके में हो गया कि कभी पैसेज में आंसर दे दिए, तो you have to identify, क्लैट भी कर देता है पैसेज में आंसर दे दिया, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि एनालिसिस में कि अच्छा यहाँ से शायद थोड़ा डिराइव हो सकता था, मैं बेटर कर सकता था। So yeah. Right. And what are you planning in future? जीके अच्छा UPSC प्लान कर रहे हो? मैंने कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में है, but let us see, exposure will tell you. Yeah, the time will tell you. Let's go with the flow. हाँ, internship वगैरह करोगे, then you will realize what will suit you. Yeah. Right. Okay. And family support में, friend group में, who you want to thank?
Yeah, first and foremost my parents, my mom, she really sacrificed a lot. मतलब मैं सुबह 9 बजे उठता था तो she used to leave me and go to work and she was like सोते रहो so yeah वो ताने वो paid off हो गए so I would like to thank my mom. because students are like कि parents बहुत pressurize कर रहे हैं. हाँ but एक टाइम तक था, उसके बाद she also realized कि रात में पढ़ रहा है तो फिर 8 घंटे की नींद तो लेगा बच्चा. And my mom, my teachers, Ayushi, my friend, we used to study together. She's my study buddy. And obviously, you first and foremost in LBT, I would like to thank you, Anupma ma'am, and I have been. Thank you. This is the key part for which I'm taking the interview. No, it's not scripted. Yeah, so she was with me since I cleared Super 30. She used to guide me throughout my preparation. कुछ भी दिक्कत होती थी, she used to message me all the time. And CLAT के रिजल्ट आने में भी मैम ही ने मुझे बताया, मुझे पता भी नहीं था. And हाँ, I called him and यार रिजल्ट मैम सच में यही रैंक है. हाँ यही है रैंक. अच्छा ओके. थोड़ा सिंगल डिजिट रैंक देखने पे स्टार्टिंग में लगता है. So you were expecting single digit rank? Yeah, you were aiming for it. I was definitely expecting for it. I was getting 99 in provisional answer की वो AR वाले क्वेश्चन में ड्रॉप. But during your preparation, were you aiming for this? Obviously not, no one could, because 0.25 marks पे सब कुछ बदल जाता है. So you can't इस mentality से नहीं जा सकते. But it's like बस दिमाग में ये था कि पेपर में पैनिक नहीं करना, अपना बेस्ट देना है और बस. हो गया उसके बाद जो था. Good. I'm so happy, and I believe student would learn a lot from your journey. And going forward, everyone will bring with it for an AMA session, Ask Me Anything session, and I believe he'll guide you a lot. And hopefully you'll get to meet him in physical sessions in whatever program we do in future. So stay tuned at Lovepacks channel, and congratulations once again. And let's give you the bouquet at least. Congratulations with it. Thank you, ma'am. And cake, I don't know, I don't have knife. Okay, cut that cake. Let's call your relatives. Yeah. Sure. On camera, we're asking you. Yes, okay, his cousins are here with us. Yeah, they are my cousins. They also supported me a lot. And they are going to be so. At least. Yeah. They are going to be so inspired. Yeah, they also. All happy and inspired. Yeah. Good. I'm pleased. Yes. Congratulations, Vivek. Happy birthday. Happy birthday. You can do this. That's easier to. Thank you. It's a birthday for your new journey. Thank you so much, Vivek. Thank you. एक्चुअली क्या है, मैंने क्या प्लान किया था, वी हैड प्लान कि हम ना वो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग खोलोगे, हम लोग बनाएंगे सरप्राइज, पर उसका ये ठीक होगा. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी.